morning, children. How are you all, children? I hope you all are fine and safe at your place, children. We were on chapter 9, comparisons of adjective. हम comparisons of adjective कर रहे थे. First of all, एक बार हम रिवाइज कर लेते children. What do you mean by adjectives? Adjectives क्या होते हैं? Adjectives, those words which describe our noun. Those words which describe our noun. Those are called adjectives. Those are called adjectives. For example, tall, dark, beautiful, ugly, short, much more, colorful, numbers. So all these words comes in adjective. For example, this board is of white color. White board. White जो है वो adjective हो गया. Black pen. Black जो है adjective हो गया, जो हमारे noun को describe करे. And one thing more. Adjective के बाद में हमेशा noun आएगा. Adjective के बाद में हमेशा noun आएगा. Adjective will be followed by a noun. Adjective will be followed by a noun. Adjective के बाद में hमेशा noun जरूर आता है. Check with me. For example, this is a big board और this is a short board. तो जो भी है adjective उसके बाद हमेशा noun जरूर आता है. Okay. Now all number names comes in adjective. जितने भी numbers हैं सब किसमें आते हैं? Adjective. For example, I have 2 bananas. I have 3 pens. Then I have many books. So many, 3, 2, 5 means numbers. All these numbers comes in adjective. All these numbers comes in adjective. Now I said colors names. Colors names also comes in adjective. For example, I am using black pen. Now pen is of which color? Black. So there I have here black sari, white board. So all colors names comes in adjective. So and remember children, adjective will be followed by a noun. Adjective will be followed by a noun. Adjective के बाद में noun जरूर आता है. Now अब आपने comparisons of adjective हमने किए थे. Positive degree, comparative degree and superlative degree. Positive degree, comparative degree and superlative degree. जब हम एक noun को किसी से कंपेयर नहीं करते तो सिंपल पॉजिटिव डिग्री हम कहते हैं ही इज अ टॉल बॉय. ओके, कैसा बॉय है? टॉल. हमने किसी से कंपेरिजन नहीं किया. अगर हम उसको उसके भाई बहन या फ्रेंड से कंपेयर करते हैं, हम किसी एक के साथ कंपेयर करते हैं, देन वी विल यूज कंपैरेटिव डिग्री. तब हम कौन सी डिग्री यूज करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री. और अगर हम उसको मोर देन 1 के साथ कंपेयर करें तब हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं. कौन सी डिग्री यूज करते हैं? सुपरलेटिव. एग्जाम्पल, कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या लगाते हैं चिल्ड्रन? ER. एंड सुपरलेटिव डिग्री we use EST. We use EST. When we compare from more than 1, then we use superlative degree. And if we compare with only 1, then we use comparative degree. Right children? When we compare with only 1, जब हम किसी एक noun को किसी एक से compare कर रहे हैं, then we will use comparative degree. But if we are comparing it from more than 1, then we will use superlative degree. Superlative degree में हम word के आगे ES लगा देते हैं. कंपैरेटिव डिग्री में हम वर्ड के आगे ER लगा देते हैं. एंड कुछ वर्ड्स के आगे चिल्ड्रन हम ना ER लगाते हैं ना EST लगाते हैं.
वहां पे हम उन वर्ड्स को चेंज नहीं करते, वहां पे हम उन वर्ड्स के पहले कंपैरेटिव डिग्री है तो हम मोड लगा देते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री है तो हम मोस्ट लगा देते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड, कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा क्या आएगा चिल्ड्रन? दैन। फॉर एग्जाम्पल, वर्ड इज पावरफुल, वर्ड इज पावरफुल, ही इज more powerful than his brother, he is more powerful than his brother, he is more powerful than his brother। अब हमने कंपैरेटिव डिग्री यूज किया है, हमने वर्ड को नहीं चेंज किया है, हमने उसके आगे क्या लगा दिया है? मोर, और उसके बाद क्या आया है? दैट ही इज मोर पावरफुल देन हिज ब्रदर। सुपरलेटिव डिग्री में जब हम एक से ज्यादा से कंपेयर करते हैं, भले चाहे वो हम सामने 2 हो, 3 हो, 4 हो और मैनी। फॉर एग्जाम्पल, ही इज द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ हिज सोसाइटी, ही इज द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ हिज सोसाइटी और ऑफ दिस सोसाइटी। अब हम पूरी सोसाइटी में से कंपेयर करते हैं, तो हमने क्या यूज कर दिया चिल्ड्रन? मोस्ट। अब इसमें दैन नहीं आया, दैन नहीं आया। नाउ सी चिल्ड्रन, मोर के बाद चिल्ड्रन हमेशा क्या आता है? दैन। मोस्ट के बाद दैन नहीं आता, क्योंकि हम उसको किसी एक से नहीं, मोर देन 1 से कंपेयर कर रहे हैं, तो हम मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं कि हाँ ये सबसे ज्यादा है, दैट्स इट। और अगर हम किसी एक से कंपेयर करते हैं तो हम कहेंगे उससे थोड़ा सा ज्यादा है या उससे थोड़ा सा कम है, तो देन आए। ओके, जब हम किसी एक से साथ कंपेयर करते हैं तब हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं एंड वी यूज देन। बट इफ वी आर using superlative degree, then we don't use then we don't use then, जब हम then यूज नहीं करते। ओके चिल्ड्रन, ये तो हमने रिवाइज किया है अभी, जो आपने अपनी प्रीवियस क्लास में किया था। Now let's do forward। पेज नंबर 61। पेज 61। इसमें प्रणीति डिस्क्राइब हर पेट डॉग, वो अपने पेट डॉग को डिस्क्राइब कर रही है, और इसमें आपको एडजेक्टिव्स अंडरलाइन करने। नाउ सी चिल्ड्रन, माय dog's name is Joe. His fur is long and soft. अब fur कैसा है? Long and soft. He is very light in weight. weight में कैसा है? Light. He likes to eat crunchy bones. कैसी bones चाहिए? Crunchy. And fresh meat. Meat कैसा होना चाहिए? Fresh. He understands me better
than anyone else in the family. Better. I take him on long walks. In quiet areas. He is one of the most faithful pets. That I have ever had since I am the youngest. In the family, he loves me more than the others. He loves me more than the others. Now, when he was young, he ran faster than other dogs. He is more popular. In the family, then I am. Joe's elder brother is with my uncle. He looks as if he is the youngest. Of the 5 siblings. 5. We spend the best time together. My dog is truly my most loyal. So these are the adjectives, children. नाउ सी क्वेश्चन में आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको इनका कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री यूज करके आपको सेंटेंसेस बताना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बता दूं, पहले हम इनकी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री कर लेते हैं। टैलेंटेड है वर्ड, चलन टैलेंटेड को हम चेंज नहीं करते। कंपैरेटिव डिग्री है तो हम कर देंगे मोर टैलेंटेड, पॉजिटिव डिग्री है तो हम कर देंगे मोस्ट टैलेंटेड। डिलीशियस है, कंपैरेटिव डिग्री है तो मोर डिलीशियस, सुपरलेटिव है तो मोस्ट डिलीशियस। फेमस है, मोर फेमस, मोस्ट फेमस। हॉट है तो उसको हम चेंज करते हैं हॉटर एंड हॉटेस्ट। केयरफुल है, मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल। नाउ सी चिल्ड्रन, हमें इन एडजेक्टिव्स में एज, डैश, एज यूज करना। मीन्स चिल्ड्रन कंपैरेटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है ही नहीं, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं किसी के साथ। ठीक है चिल्ड्रन, एज ब्यूटीफुल एज हैप्पी एज सैड एज। मीन्स बीच में हम क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव। क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव। बीच में हम लगाएंगे एडजेक्टिव और साइड में आएंगे एज। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आप सबको पता है, राइट चिल्ड्रन। अब अगर काउंटेबल नाउन होता है, मतलब जिन नाउन को हम काउंट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल पेन है, बुक्स है, बोर्ड है, जिनको आप काउंट कर सकते हैं, उनके आगे हम क्या लगाएंगे, as many as।
एज फ्यू, और अगर कम है तो एज फ्यू एज। बट अगर अनकाउंटेबल नाउन है जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल मिल्क हो गया, वाटर हो गया, खाना हो गया, इनको आप काउंट नहीं कर सकते, राइट। मिल्क, वाटर, खाना, इनको आप काउंट नहीं कर सकते, तब इनके लिए हम क्या यूज करेंगे, as much as, as little as much as little as। ओके चिल्ड्रन। बैक काउंटेबल नाउन, जब काउंटेबल नाउन होता है जहां हम नाउन को काउंट कर सकते हैं और जहां हम नाउन को काउंट नहीं कर सकते, तो हम ये यूज करते हैं। देखो अब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कम टू पेज नंबर 62। हमारी लर्न एक्सरसाइज है। पहला हमें यूज करना है एज, एडजेक्टिव आएगा या नॉट एज। अब इन्होंने एक हमें करके दे रखा है चिल्ड्रन, सी अ स्टोर्मी सी इज वर्स देन अ स्टोर्म ऑन लैंड। मतलब समुद्री तूफान एक जो जमीन पर तूफान आता है उससे भी खराब होता है। अब इन्होंने सिंपल कंपैरेटिव डिग्री यूज किया, अब हमें एज यूज करके उसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। तो इन्होंने किया है अ स्टोर्म ऑन लैंड इज नॉट एज बैड एज अ स्टोर्म एट सी। मतलब अ स्टोर्म ऑन लैंड एक जमीन पे आया हुआ तूफान समुद्र के आए तूफान जितना भी बुरा नहीं होता। सेंटेंस वही है, मतलब वही है, उसको हमने किस तरीके से यूज कर दिया, एज यूज कर दिया। नाउ वी विल सी आवर अदर सेंटेंसेस। दीज डेज स्ट्रॉबेरीज आर मोर एक्सपेंसिव देन गुआवास। आजकल स्ट्रॉबेरीज ज्यादा महंगी हो रही है अमरूद से। सो व्हाट वी विल यूज, these days not these days guavas are not as expensive guavas are not as expensive as strawberries. A flight to the United States is more expensive than a flight to London. कि मतलब एरोप्लेन की जो टिकट होती है जब अगर हम अमेरिका जाते हैं तो वो ज्यादा महंगी है बजाय इसके कि हम लंदन जाएं। तो मतलब अमेरिका ज्यादा महंगा है लंदन जाने से। Now see, a flight to is not
as expensive as a flight to United States. To United States. Fourth, my hands became ice cold when I saw a tiger in front of me. मेरे हाथ बिल्कुल ठंडे पड़ गए बर्फ की तरह जब मैंने शेर को अपने सामने देखा. तो हम करेंगे my hands became, आपका became लिखा हुआ है, उसके आगे ऐसे कर देना चाहिए. And then we will use as cold as ice. Okay, children. Fifth, the cricket ground in Mumbai is bigger than the one in Delhi. आप लिखोगे the cricket ground is not as big as the ground of Mumbai. Mumbai. Sixth, देखो चिल्ड्रन, राणा प्रताप वॉज अ ब्रेव लॉयल. राणा प्रताप एक बहादुर शेर था. तो हम इसको ऐसे करेंगे, राणा प्रताप was as brave as a lawyer. As brave as a lion. Now seventh, my sister and I are 12 years old. Like this children, आपको 7, 8, 9, 10 करने हैं. I will definitely send the pic. मैं आपको पिक भेज दूंगी कि आप इसको बुक में ही कैसे करें. आपको नोटबुक में करने की जरूरत नहीं है. Now see, practice exercise. प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 देखो. द पिजन आपको मोर देन या लेस देन यूज करना है. मोर के बाद में एडजेक्टिव, फिर देन आएगा. लेस के बाद में एडजेक्टिव, फिर देन आएगा. सॉरी चिल्ड्रन. फॉर एग्जाम्पल देखो, उन्होंने दे रखा है हमें, द पिजन कैन ईट डैश ग्रेन और स्पैरो. तो हम करेंगे द पिजन कैन ईट मोर grain than sparrow. Second है, the life in villages is dash peaceful dash than in cities.
तो हम कर देंगे मोर पीसफुल देन दैट इन सिटीज। अब इसमें मोर आ रहे हैं। एक 6 देखो चिल्ड्रन, 6 1, उसमें लेस देन आ रहा है द डिश इज डेज स्पाइसी। इसमें हम मोर भी यूज कर सकते थे और लेस भी यूज कर सकते थे। सो मोस्टली हमारे मोर आ रहे हैं, तो इसमें हमने क्या यूज कर दिया, लेस। फॉर एग्जाम्पल द डिश इज लेस स्पाइसी देन द वन वी एट यस्टरडे। ये कम मसालेदार है वजह उसके जो हमने कल खाई थी। नेक्स्ट देखो, दिस फोटोग्राफ इज डैश ब्लरी डैश द वन यू टुक ऑन संडे। ये फोटोग्राफ ब्लरी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ये फोटोग्राफ जो है कम ब्लरी है बजाय उस फोटो के जो हमने संडे को निकाली किया। ये फोटो संडे वाली फोटो से कम ब्लरी है, तो हम ऐसे कर सकते हैं लेस blurry then the lamp in the bedroom is more costly than the one in the dining room. Health is more important than wealth. अब हमें नीचे वाले 8 fill in the blanks में देखो चिल्ड्रन, we have to use as many as और as few as और as little as और as much as। मीन्स अगर काउंटेबल नाउन है तो हम many या few यूज करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन है तो हम much या little यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मंकी। अब मंकी हैज डैश फर। फर मीन्स जो बाल होते हैं। अब मंकी के बाल के चिल्ड्रन किसी के भी काउंट हो सकते हैं, नो। तो हम क्या यूज करेंगे, मच या लिटल। तो हम यूज करेंगे द मंकी हैज एज लिटल फर ऑन इट्स बॉडी एज दैट वन। हमने लिटल यूज किया है। सेकेंड है इन टिम स्कूल क्लास सेकेंड हैज। अब इसमें स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन हो गया तो मैनी या फ्यू आएगा, तो हम लिखेंगे इन टिम स्कूल क्लास सेकेंड हैज एज मैनी स्टूडेंट्स एज क्लास थर्ड हैज। द बर्ड्स आर मेकिंग। अब आवाज कर दी है, आवाज को हम गिन नहीं सकते तो हम करेंगे द बर्ड्स आर मेकिंग एज मच नॉइज as a group of chattering girls. Okay children, now the girls team has together flowers है, तो flowers को हम काउंट कर सकते हैं children। so as many flowers as the boys team. John has visited ताजमहल। अब आप कितनी बार किसी प्लेस को पे जाते हो आप काउंट कर सकते हो, राइट? तो हम क्या यूज करेंगे, मैनी। जॉन हैज विजिटेड ताजमहल एज मैनी टाइम्स एज। नाउ मिल्क है, मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते चिल्ड्रन, सो इट इज अनकाउंटेबल नाउन। तो हम यूज करेंगे देयर इज एज लिटल मिल्क इन द जग एज देयर इज इन द रेड वन। ड्रेस की कॉस्ट, पैसे। पैसे चिल्ड्रन, ये पैसे जो है अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। ओके, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं लिटिल मनी, सम मनी, कि अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। आप कहोगे मैम पैसे तो हम काउंट कर सकते हैं, आपने सही कहा, बट अगर काफी सारे हम लगा दें तो हम उनको बहुत ज्यादा काउंट नहीं कर सकते, तो वो अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। तो हम उनके आगे करेंगे द ड्रेस कॉस्ट एज मच मनी एज द एंटायर मील for 4 people in a good restaurant. Rajneesh has opened
as many shops as his brother, and so on. So children, you have to do all these fill in the blanks yourself. आपको ये सारे fill in the blanks अपने आप करने चिल्ड्रन. Do try to do it yourself. अगर आप करेंगे तो आपकी ग्रामर बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. आप पहले वीडियो देखो, उसके बाद आप होमवर्क करना. पहले वीडियो देखो, देन वी विल डिस्कस इट इन लाइव क्लास. हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे. आपके सारे क्वेश्चंस ऑल विल बी आंसर्ड इन लाइव क्लास. एंड चिल्ड्रन प्लीज अटेंड योर लाइव क्लासेस ऑन रेगुलर बेसिस. लाइव क्लास चिल्ड्रन प्लीज जरूर अटेंड करनी है. एंड चिल्ड्रन जो अब आपका सेकेंड असाइनमेंट मिलेगा, उसमें आपका जो 50% सिलेबस रह गया था मिड टर्म का, वो आएगा. ओके चिल्ड्रन, एंड देन आई विल डेफिनेटली सेंड यू द आंसर्स. मैं आपको ये आंसर जरूर सेंड करूंगी, बट पहले आपको अपने आप करने. देन यू विल मैच द आंसर्स. तब आप उन आंसर से उनको मैच कर लेना कि आपके कितने रॉन्ग और कितने करेक्ट. ओके चिल्ड्रन, any difficulty we will discuss in live class. Hope you will stay at home, stay healthy and stay safe. Okay children, bye for today. Thank you.